Hello and Assalamu alaikum, dear students. Today I am here with another very important lecture, the applications of linear systems in traffic patterns. Dear students, for this practical mathematical problem, the statement for the traffic design is given here. The statement is the network in the following figure shows the traffic flow in vehicles per hour over several one-way streets in DHA phase 4 during a typical early afternoon. Determine the general flow pattern for the network. Dear students, you are given a traffic design and you are told to calculate the pattern for the traffic network. Means you are supposed to calculate all the unknown values for this traffic design. So dear students, let's understand the traffic design first. There are four junctions for the given traffic design: junction A or intersection A, intersection B, intersection C, and intersection D. Dear students, initially we will check the external flow in and the outside flow out traffic flow for this traffic design. So at intersection A, dear students, you can see 300 vehicles are flowing in, 500 vehicles are flowing in. The direction of the arrow will tell us either the vehicles are flowing in or flowing out. At intersection B, dear students, 300 vehicles per hour are flowing out, and here this quantity is unknown. X3 is not given in this traffic pattern. After the calculating, I have written this value here. We will come to know how did I calculate this X3. Here at intersection C, 400 vehicles are flowing in, 100 vehicles are flowing in, and at intersection D, 600 vehicles are flowing out. Dear students, let's start with the initial fundamental concept for any traffic design, that the total flow in must be equal to the total flow out. Let's start with this fundamental definition. For any network, for any traffic network, the total flow in, the total flow in must be equal to total flow out. Dear students, from this traffic design, now we can see what is the total flow in and what is the total flow out. Let's start from intersection A. 500 number of vehicles are flowing in, so we will write in the column of the flowing in, plus 300 is also flowing in, plus, and here there is nothing. And at intersection C, 400 plus 100, 400 plus 100, and at intersection D there is nothing to flow in, is equal to, let's check the total flow out. At intersection A there is nothing which is going out. At intersection B, 300 plus x3, 300 plus x3, and at intersection C there is nothing, and at intersection D there are 600 number of vehicles per hour flowing out. So dear students, let's combine these quantities: 500, 300, 800, 1200 and 1300 number of vehicles per hour flowing in, and 300 plus 600, 900 means x3 plus 900. From this relation, now we can calculate the unknown value of x3. So dear students, if I shift this 900 to this side, the x3 will be 400, which I had already mentioned here in the given traffic design.
So this value we have calculated by this instantaneous or basic definition of the traffic design. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन से एक्सटर्नल हमारे पास जो फ़्लो इन और फ्लो आउट की बात की है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रीट सेगमेंट्स हैं उनके लिए जो हमारे पास जो गाड़ियों जिस तादाद में वहाँ पर ट्रैवल करेंगी, अब हम उस तादाद को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्ट्रीट सेगमेंट्स में हमारे पास जो अननोन्स हैं वो x1 है, x2 है और x4 है। अच्छी बात यह है कि x5 हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 27। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है, x5 इज़ गिवन। तो यहाँ पर अगर x5 ना भी लिखा जाए तो ये हमारे पास 27 इस स्ट्रीट से नंबर ऑफ़ व्हीकल्स फ़्लो कर रही हैं C से D की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हर एक इंटरसेक्शन के रिस्पेक्टिवली हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल फ़्लो इन एंड व्हाट इज़ द टोटल फ़्लो आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये डायग्राम आपके सामने रहे ताकि आप इसकी कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करते हैं, नाउ एट इंटरसेक्शन ए, लेट्स कंप्यूट वन बाय वन फॉर ईच इंटरसेक्शन। एट इंटरसेक्शन ए, व्हाट इज़ द फ्लो इन। चलें, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैं दो कॉलम बना लेता हूँ, एक फ़्लो इन का कॉलम बना लेता हूँ और एक फ़्लो आउट का कॉलम बना लेता हूँ, ताकि हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने में या इसको ऑर्गेनाइज़ करने में आसानी रहे। लेट्स सी जी, एट इंटरसेक्शन ए पर सबसे पहले हम फ़्लो इन देखते हैं। फ़्लो इन मेरे पास है 500, इंटरसेक्शन ए पर हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरसेक्शन ए पर तो हम फ़्लो इन देखते हैं 500 एंड 300, 500 प्लस 300, और ये हमारे पास इज़ इक्वल टू होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास वही डेफिनेशन है जो हमने पहले यूज़ की है, इज़ इक्वल टू। और ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इंटरसेक्शन ए से x1 हमारे पास जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं वो यहाँ से दूर जा रही हैं, मीन्स ये हमारा फ़्लो आउट होगा, और ये जो x2 है ये भी फ़्लो आउट होगा। तो हमारे पास इंटरसेक्शन ए पर जो फ़्लो आउट है दैट इज़ x1 प्लस x2। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन बी पर। बी पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास फ़्लो इन हमारे पास क्या क्या आ रहा है, x2 देखें बी की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास ये फ़्लो इन होगा बी के लिए, x2 प्लस x4 भी फ़्लो इन कर रहा है, तो हमारे पास होगा ये x2 प्लस x4 इज़ इक्वल टू, और हमारे पास 300 और x3 की जगह हम 400 वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास होगा 300 प्लस 400। ओके डियर, अब हम आते हैं इंटरसेक्शन सी के लिए देखते हैं। एट इंटरसेक्शन सी पर आप देख सकते हैं हमारे पास फ़्लो इन 100, 400, 100 प्लस 400 इज इक्वल टू फ़्लो आउट हमारे पास देखें x5 दैट इज़ 27 एंड x4, तो इसको मैं लिख रहा हूँ x4 प्लस 27। और इन एट इंटरसेक्शन डी पर चेक कर लेते हैं। डी पर आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फ़्लो इन देखिएगा, ये देखिए इसकी डायरेक्शन डी की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी डी की तरफ है, तो हमारे पास x1 प्लस 27 जो है वो हमारे पास फ़्लो इन है एंड 600 हमारे पास फ़्लो आउट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा जो हमारे पास इंटीरियर हमारे पास जो स्ट्रीट सेगमेंट्स का पोर्शन था वहाँ से हमने पूरा डेटा एक्यूमुलेट कर लिया है और हमने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, इसको हम थोड़ी सी इसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। इसको कंबाइन करने के बाद इसको रीअरेंज करके हम लिख देते हैं कि हमारे पास किस तरह की हमारे पास फॉर्म बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो देखिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑन रीअरेंजिंग x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 800, इससे बना लिया मैंने। अब इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या होगी, x2 प्लस x4 इज़ इक्वल टू 700। इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मेरे पास x4 मौजूद है, x4 इज़ इक्वल टू 400 500, और ये यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास कितना होगा, 500 में से 27 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 473। और यहाँ पर भी देखिएगा हमारे पास एक ही अननोन है दैट इज़ x1 इज़ इक्वल टू 27, यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, 600 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 573। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये हमारे पास जो एक अरेंज फॉर्म में जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आई हैं, दीज आर नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कह सकते हैं फॉर द अननोन्स x1 x2
एंड x4, x3 तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर नॉन है। ठीक है जी। तो ये देखें, ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम आ गया। इसके अंदर एक और अच्छी बात हमारे पास ये है कि ये देखें हमारे पास ये जो रिजल्टेंट आ गया, इसके अंदर हमारे पास दो अननोन्स की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ रही हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह याद है जिस तरह हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है कि अब हमने इसको क्या नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करके इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली, हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना है कि इस लीनियर सिस्टम की हमने एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स डेवलप करनी है। उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर फिर हम रो ऑपरेशन ऑपरेट करके इसका हम क्या निकालेंगे, अननोन्स के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। तो क्या कीजिएगा, तो ये लीजिए, ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम आ गया। इस लीनियर सिस्टम की हम एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स डेवलप कर लेते हैं। तो इस सिस्टम की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, देखिएगा डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिएगा मेरे पास जो कोफिशिएंट है x1 का 1, x2 का कोफिशिएंट मेरे पास है 1। देखिएगा यहाँ पर इस इक्वेशन में x3 और x4 मौजूद नहीं है, तो मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को 0 0 लिखूँगा, क्योंकि दोनों मेरे पास वैनिश्ड हैं। वैनिश्ड होने का मतलब होगा कि हमारे पास वो 0 से मल्टीप्लाई हैं, यानी कि कोफिशिएंट 0 होगा। और इक्वेशन नंबर 2 में देखिएगा मेरे पास x2 से स्टार्ट है, तो x1 का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, मींस हमारे पास क्या होगा, ये 0 वैनिश्ड x1। तो x2 का कोफिशिएंट मेरे पास 1, x3 यहाँ पर लाई नहीं करता, मींस का हमारे पास 0 कोफिशिएंट होगा, x4 1, और ये मेरे पास कांस्टेंट 700। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ x4 है, तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे, 473। और इसी तरह यहाँ पर देखिएगा सिर्फ x1 मौजूद है, इसके अलावा जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, 0, और कांस्टेंट मेरे पास हो गया 573। तो दिस इज़ व्हाट आवर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द ऑब्टेन्ड लीनियर सिस्टम। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस लीनियर सिस्टम पर हम मैथमेटिकल रो ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं। तो ये काम मैं अभी आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ कि ये काम हम अच्छा खासा कर चुके हैं कि हमने रो ऑपरेशन ऑपरेट करना है। रो ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए देखें हमारे पास लीडिंग वन मौजूद है। लीडिंग वन को हम क्या करते हैं कि इसी कॉलम के नीचे तमाम एंट्रीज को रिड्यूस टू 0 कर देते हैं, हम इसको 0 कर देंगे, और बाकी जो रो ऑपरेशन हैं वो आप ऑपरेट करके इसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट मेरे पास आएगी, इसकी जो रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास आएगी, रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आफ्टर दी रो ऑपरेशंस, वो मेरे पास आएगी ये 1 1 0 0 800, 0 1 0 1 700, 0 0 0 1 473, 0 0 0 0 0। यानी कि हमारे पास जो रो 4 होगी वो हमारे पास पूरी 0 रो होगी, इंटायर एलिमेंट्स आर 0 इन R4, तो ये हमारी 0 रो होगी और ये रैंक में शामिल नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट द रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आफ्टर द रो ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्टेड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इससे हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम है कैसे बनाएंगे। R1 से इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास क्या होगा, x1 + x2 = 800 मेरे पास, और R2 से इक्वेशन 2 बनाएंगे तो मेरे पास ये देखें कोफिशिएंट x2 का है, x2 + x4 = 700। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा x4 की मेरे पास वैल्यू आ गई 473। नाउ दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस रो एक्लन फॉर्म को या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो रिमेनिंग अननोन्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं x4 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास x2 आ जाएगा, और अगर ये जाकर यहाँ आएगा, यहाँ कर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 700 - 473 करेंगे तो हमारे पास ये x2 की वैल्यू आएगी 227, और इस 227 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x1 आ जाएगा, ये यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 573। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमने एक
ट्रैफिक पैटर्न के लिए हमने क्या किया कि उसका जो गिवन डेटा था उसको हमने एक लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में फॉर्म किया, उसको फिर हमने लीनियर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया। लीनियर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम जिस तरह से चैप्टर 1 में करते आए हैं उसको हमने एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करके उस पर हमने रो ऑपरेशंस ऑपरेट करने के बाद जो अननोन्स थे उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रो ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि हमारे पास जो ट्रैफिक पैटर्न मौजूद था, जो ट्रैफिक डिज़ाइन था, उस ट्रैफिक डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो x1 जहाँ पर हमारे पास स्ट्रीट थी, तो इस x1 वाली जगह से हमारे पास कितनी यहाँ से व्हीकल्स पर आवर ट्रेवल करेंगी 573, और x2 जो हमारी स्ट्रीट सेगमेंट थी वहाँ से जाएंगी 227, यहाँ से इज इक्वल टू 227 नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर आवर। और डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो x4 अननोन था वहाँ से 473, यानी x4 इक्वल टू 473 नंबर ऑफ़ व्हीकल्स पर आवर विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस स्ट्रीट सेगमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा एक बार फिर वहीं जिस तरह से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग दी क्लास करवाए थे, वहीं फंडामेंटल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने एक और एप्लीकेशन, एक और प्रैक्टिकल बेस्ड मैथमेटिकल क्वेश्चन देखा ट्रैफिक पैटर्न के लिए या ट्रैफिक नेटवर्किंग के लिए या फिर ट्रैफिक फ़्लो के लिए, और हमने इसके आपके पास सोल्यूशन निकाल के दिए। और ये जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशंस आ रहे हैं। देखें, x4 की भी हमारे पास यूनिक डेफिनेट वैल्यू है, x2 की भी, x1 की भी, और जो हमारे पास x3 था इसके लिए भी। तो हमारे पास अब ये जो सोल्यूशंस आए हैं ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशंस हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या था कि वी वर गिवन enough sufficient data so we could calculate the unique solutions for the given traffic design. आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपने लेक्चर कॉपी पर एक बार लिखेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके छोड़ेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू वेरी मच।